So welcome to dear students. Today my lecture is on flow through parallel pipes. इससे जो पीछे वाला प्रीवियस लेक्चर था that is on the flow through the pipes in series or compound pipe. So what do you mean by the pipes in series? You know that the pipes which are connected end to end, pipes of the different diameters and different length, and they are connected end to each other, to one another. So that arrangement, you can say that the pipes are arranged in series. You understand? The flow which is flowing through the pipe, you can say that the discharge in each pipe is same. That is Q1 is equal to Q2. This is equal to Q2. 3. You understand? तो डिस्चार्ज क्या होगा जब पाइप्स सीरीज में होगी, डिस्चार्ज आपका सेम होगा, लेकिन दे आर हैविंग द डिफरेंट डायमीटर्स एंड द डिफरेंट लेंथ एंड दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड. यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इक्विवेलेंट पाइप. सो व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विवेलेंट पाइप? Equivalent pipe means when the pipes are connected in series and we want to replace these pipes with a single diameter of the pipe, uniform diameter of the pipe. In that case, the length of that pipe, that should be same. Suppose if we are having the three pipes which are connected in series of different diameter and different length. So the sum of the length of these थ्री पाइप्स और फोर पाइप्स, जो भी आपकी पाइप्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जो इक्विवेलेंट पाइप की जो लेंथ होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द कंपाउंड पाइप. फर्स्ट इसमें ये पॉइंट था, और सेकंड इसमें क्या था कि हेड लॉस जो आपका होगा, टोटल हेड लॉस इन द कंपाउंड पाइप, दैट शुड बी द हेड लॉस दैट इज इक्वल टू द हेड लॉस इन द इक्विवेलेंट पाइप. ये दो कंडीशंस थी इसमें. एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द डायमीटर, के डायमीटर हमें इक्विवेलेंट पाइप का हमें डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है कि उसका कितना डायमीटर होना चाहिए, सो दैट द डिस्चार्ज दैट शुड बी इक्वल टू दैट द डिस्चार्ज विच इज वी आर गेटिंग थ्रू द कंपाउंड पाइप्स और पाइप्स इन सीरीज. सो दिस वाज माय प्रीवियस लेक्चर. उसमें मैंने एक दो एप्लीकेशंस आपको करवाया था सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. Now the next lecture today, that is a flow through parallel pipes. So what do you mean by the parallel pipes? Flow through parallel pipes. Suppose we are having the main pipe. ये आपका क्या है? This is your main pipe, and main pipe is connected with the two pipes which are parallel to each other. दो पाइप से मेन पाइप है, उसके बाद that is connected with the two pipes which are parallel to each other. They can be having the same diameter or they can be having the different diameter. उसका same diameter भी हो सकता है, different diameter भी हो सकता है. And this arrangement that is in parallel. ये जो दो pipes हैं main के साथ हमने attach किया, that they are in parallel, and then after the downstream these two parallel pipes, they are connected with the main. You understand? So such type of arrangement we can say that the pipes are in parallel. You understand? तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि पाइप्स जो है वो क्या है? पैरेलल में. आप अंडरस्टैंड किया? एक मेन पाइप है, मेन पाइप के आगे आप क्या करें, उसकी दो ब्रांचेस हो जाएंगी, डिफरेंट डायमीटर ऑफ द पाइप्स, दे आर कनेक्टेड टू द मेन पाइप. बट दीज पाइप्स जो आपने कनेक्ट किए हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड देन आफ्टर दैट अगेन दे आर कनेक्टेड टू द मेन. सो सच अरेंजमेंट यू कैन से दिस अरेंजमेंट is called the arrangement of the parallel pipes. And the discharge, suppose if I say the discharge is pipe main में pipe में discharge आपका क्या है? Q is the discharge is the main pipe. जो इसका discharge है इस pipe में, this is Q1 and this is Q2. You understand? Discharge in first
pipe, parallel pipe, you can say that is Q1 and this is equal to Q2, and after that जहाँ पे आपका जो डिस्चार्ज होगा ये आपका क्या होगा, Q होगा. यू अंडरस्टैंड. तो आप कह सकते हैं कि टोटल डिस्चार्ज जो आपका डिस्चार्ज होगा, टोटल डिस्चार्ज जो डिस्चार्ज आपका मेन में होगा Q, ये आपकी एक कंडीशन है, दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट तो ये होगा Q, दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. अब दिस अरेंजमेंट, वाई वी मेक्स दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दैट we if we want to increase the फ्लो रेट, अगर हमें फ्लो रेट इंक्रीज करना है तो हम इस किस्म का अरेंजमेंट करते हैं. पैरेलल पाइप्स का जो अरेंजमेंट होगा उससे हमारा क्या होगा, जो हमारा फ्लो रेट है, चाहे हमारा डिस्चार्ज है, दैट कैन बी इंक्रीज. यू अंडरस्टैंड. इसका एक सिग्निफिकेंस ये होगा. और दूसरा मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज जो ईच ब्रांच में डिस्चार्ज होगा, ये Q1 प्लस Q2. अगर इफ दिस इज डिस्चार्ज Q1, this is in the second pipe, the discharge is Q2. So total discharge, this is equal to Q1 plus Q2, right? इसमें एक और कंडीशन होगी. कंडीशन क्या होगी, जो हेड लॉस है पैरेलल पाइप के केस में, हेड लॉस इन पाइप नंबर 1. सपोज मैं कहता हूं कि ये आपकी पाइप क्या है, ये आपकी पाइप 1 है, ये आपकी पाइप 2 है. So head loss in pipe number 1, that is equal to head loss in pipe second, right? So head loss जो आपका pipe 1 के ऊपर है, that should be equal to the head loss in pipe second. So these two conditions are there. Total discharge, this is equal to the sum of the discharge in pipe number 1 and pipe number 2, which are connected parallel to each other with the main pipe. And if I say that head loss in pipe number 1, that should be equal to the head loss in pipe number 2, that is HF1. This is the head loss in pipe number 1. This is equal to HF2. You understand? So these two conditions are there. अब इस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड प्रॉपरली तभी करेंगे कि इसकी हम एक दो एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हम करते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. इसका तो यही पोर्शन है, थ्योरी पार्ट इज अप टू दिस. अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस इन द फील्ड. हमें इफ वी वांट टू कैरी द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, समटाइम्स वी आर यूजिंग द पाइप ऑफ सपोज दिस डायमीटर 80 mm diameter of the pipe, but that pipe is not available in the store or somewhere else. We don't have that pipe. तो हमें जो पानी कैरी करना है, we have to carry the water there. तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द पाइप्स, पैरेलल पाइप्स का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट हम जो डिस्चार्ज है हमारा वो हम इक्वल डिस्चार्ज, जितना हमें डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है या जितना हमें डिस्चार्ज चाहिए, दैट डिस्चार्ज शुड बी रीच टू दैट प्लेस. यू अंडरस्टैंड. तो इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लेते हैं और उसको हम देखते हैं कि हाउ वी विल कैलकुलेट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन वी विल टेक द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. यू अंडरस्टैंड. तो लेट अस वी विल टेक द प्रॉब्लम हियर. So this is the application I am taking here so that you can understand it well, right? अब देखिए ये क्या है, what is the application, क्या प्रॉब्लम क्या है. This is your reservoir. This is reservoir number 1 and this is your another reservoir, right? So this reservoir is connected by a pipe.
the length of the pipe that is given as 2000 meter and the diameter of the pipe that is given as 0.4 meter. You understand? Then there is a junction, and here from the junction, two pipes of the same diameter and same length, they are connected parallel, or you can say they run by the parallel to each other, and they are connected at the junction. The length of the pipe, ये जो आपका ये पाइप है, जंक्शन से आपने एक और पाइप दिया, इसका लेंथ कितना है 1000 मीटर and the diameter is 0.3 meter, and the same length and the diameter that is having the second pipe, but these two pipes are parallel to each other, right? The other end of these two pipes, they are connected with another reservoir. You understand that? Why? What does it mean? It means the water is flowing from this tank to this tank. What? Here the arrangement is different. There is not a single pipe. Up to this length, we are having a single pipe, and then there is a junction. Two pipes, they run parallel to each other, having the same diameter and same length, and the other end of these two parallel pipes, they are connected with the reservoir. You understand? As we are carrying the water from here. The difference of the water level of the reservoir E and reservoir F, that is given here, and you know that the level of the reservoir that should be maintained constant. तो जो इनका difference होगा water level का, that is given as 10 meter. This is given. Difference of the water level कितना है? 10 meter है. That is also given. You understand this? Coefficient of friction. So coefficient of friction is given as, the coefficient of friction of all the pipes are same, and this is given as F is equal to 0.15. You understand? We have to find the discharge. हमें क्या निकालना है? Discharge निकालना है. We have to find the discharge. You understand? So you can say this is the question. इसमें आप देखिए ये पैरेलल पाइप्स भी हैं, ये क्वेश्चन है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इनमें ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके ये पाइप फ्लो के, उसमें एक तो बर्नौलीज इक्वेशंस का इस्तेमाल होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. टू इक्वेशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देयर, and the second one, that is the continuity equation. You understand? So Bernoulli's equation and continuity equation से हम क्या करते हैं कि different diameters will find out, right? तो ये आपको अरेंजमेंट दिया है, ये आपका अरेंजमेंट है. आपने जहाँ से रेजरवायर E से रेजरवायर F के ऊपर में पानी आपको कैरी करना है, जो पाइप है उसका लेंथ भी दिया है, जहाँ पे ये जंक्शन है, टू पैरेलल पाइप्स आर कनेक्टेड, इनका भी लेंथ और डायमीटर दिया गया है. बट हमें क्या करना है कि हमें डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, राइट? टोटल डिस्चार्ज क्या होगा? तो एज आपको पता है डिस्चार्ज जो आपका क्यू होगा ये किसके बराबर होता है? एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट? सो टोटल डिस्चार्ज दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. तो अगर हम ये वेलोसिटी की वैल्यू, इसका मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू तो कहीं भी नहीं दिया गया है. वेलोसिटी इज नॉट गिवन टू अस. तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट. बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम बर्नौलीज इक्वेशंस और कंटिन्यूटी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. यू अंडरस्टैंड? तो पहले करें आप अप्लाई बर्नौली
इक्वेशन एट, कहां पे अप्लाई करें? ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, on the of the reservoirs, कहाँ पे? reservoirs E and F। क्या मतलब है इसका? जो रेजरवायर आपका, ये रेजरवायर आपका E है एंड दिस इज योर रेजरवायर F। तो हम बर्नौलीज इक्वेशन हम क्या करेंगे, जो फ्री सरफेस ऑफ द वाटर है, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर लेवल, टॉप सरफेस यू कैन से, जहां इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो बर्नौलीज इक्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे एट पॉइंट E एंड पॉइंट F, यू कैन से, राइट? तो ऐसे भी है एट पॉइंट E एंड F, एंड पॉइंट E एंड F दैट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्री सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ द रेजरवायर E, एंड F दैट इज द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, दैट इज द पॉइंट ऑफ द रेजरवायर F। यू अंडरस्टैंड? तो क्या है ये? आपका होगा PE रो जी प्लस BE स्क्वायर, वेलोसिटी एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर मैं BE से डोनेट करूंगा, प्लस जो डेटम हेड है, सपोज मैं कहता हूं कि डेटम हेड जहां से ले लीजिए, दिस इज जेट E, तो दिस इज द पोटेंशियल हेड, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल फ्रॉम द डेटम लाइन, फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, यू कैन से, राइट? So this is equal to, this should be equal to क्या होना चाहिए? PF by rho G pressure head plus BF square velocity on the free surface of the water on the tank F 2G plus ZF. This is the potential head from the datum line up to the free surface of the water, plus head loss. You understand? Plus head loss. जो head loss होगा, जो friction loss होगा, head loss होगा, जब पाइप जहां से जहां तक फ्लो करेगा, तो जहां पर head loss आपका होगा और जहां पर भी आपका head loss होगा। You understand? So this is equal to head loss, right? अब देखिए इसमें व्हाट इज योर PE, ये जैसे आपको पहले भी बताया कि प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, तो दैट प्रेशर इज टेकन एज 0। यू अंडरस्टैंड? तो ये प्रेशर हेड आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द वाटर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द टैंक दैट इज टेकन एज 0 प्लस ZE, ये तो जैसे ही रहेगा, and this is equal to PF that is also equal to 0 plus ZF plus HF कर लो, HF, right? Plus HF, you understand? तो therefore ZE minus ZF, this is equal to, इसको इधर ले आए, this is equal to HF. You understand? जहां तक क्लियर है? अब देखिए ZE minus ZF. What is your ZE? ZE, the distance from here, this is from the datum line, this is your ZE. आप इधर से ही ले लीजिए, आप इसका रेफरेंस लाइन आप इधर से ले लीजिए,
This is the reference line. We have taken here reference line. So ZE minus ZF, right? So ZE minus ZF, this is equal to the difference of the water level. You understand? ZE minus ZF, this is the difference of the water level. ये जो water level का जो difference है, ये देखिए ZF जहाँ तक है, ZE जहाँ तक है, और ZE minus ZF ये होगा ZE minus ZF. So difference in the water level, that is denoted by capital H. You understand? This is equal to capital H. So it means that हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल H, this is equal to HF. अब कैपिटल H क्या है? This is 10 meter. Capital H, this is 10 meter. Therefore, 10 is equal to HF. You understand? So, total friction loss, head loss जो आपका होगा, वो किसके बराबर होगा? 10 मीटर के बराबर होगा, राइट? अब देखिए, therefore, अगर मैं 10 को ऐसे लिखूं, पहले आ जाइए इस पाइप में जो हेड लॉस होगा, मेजर हेड लॉस होगा, दैट इज 4, फार्मूला लिख लेते हैं, 4F इंटू L इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2GD, राइट? प्लस दूसरा, ये जो आपकी पैरेलल पाइप से, इसमें जो फ्रिक्शन लॉस होगा वो क्या होगा? हमने फ्रिक्शन कांस्टेंट सेम लिया है, L1 V1 स्क्वायर अपॉन 2GD1. You understand? Right? So 10, this is equal to 10, this is equal to this one. अब इसमें वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. Therefore, H, this is equal to 4 into, what is your F? That is given as 0.15. What is your L? This is 2000 meter. What is your V square? V square तो हमारे पास नहीं है, that we have to calculate. Divided by 2G क्या है? 9.81. And what is your diameter? This is your 0.4, right? प्लस इसी तरीके से जहां पर लिख लीजिए आप 4, 0.15, L1, this is given as 1000 into B1 square, because the velocity is different here, diameter is different, velocity is, if the velocity of this velocity of the fluid in this pipe is V, I have taken the velocity of the water in the pipe, this one V1, because velocity that is different, because their diameters are different, right? And 2 into G तो यही रहेगा 9.81 into what is your D1, this is 0.3, right? तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, राइट? तो कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना आया ये. So this is 15 point, इसको मिटा दीजिए. So पहला आया ये, this is your 15.29 B square H. तो H आपका क्या था? 10 था. This is 15.29 B square plus
इसको कैलकुलेट करें, इन सभी को कैलकुलेट करें तो दिस इज 10.91, चेक कर लीजिए आप, दिस इज इक्वल टू 10.19 v1 square. So this is 10.19 v1 square, right? So this is your equation number first. ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट आ गई. You understand this? Now जहाँ तक हो गया, ये आपने बर्नौलीज इक्वेशन लगाया, एक इक्वेशन आपकी आ गई. आप क्या करें, कंटिन्यूटी इक्वेशन इस्तेमाल करें, राइट? सो फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम द क्योंकि हमें जो b की वैल्यू चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास वैल्यू नहीं है, और जब तक हम b1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b कैलकुलेट नहीं करते तो हमारे पास b की वैल्यू नहीं आएगी. मीन्स हमें b1 की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ b वी हैव टू कन्वर्ट दिस. तो कंटिन्यूटी अगर के इक्वेशन लगाएं हम, तो इसमें क्या है कि टोटल डिस्चार्ज क्या होता है इसमें पाइप में, सेम होगा. टोटल डिस्चार्ज क्या है, Q है अगर ये डिस्चार्ज, एंड दिस शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2, राइट? इसमें डिस्चार्ज, ये जो पाइप है ये वाला, जहां तक जो डिस्चार्ज था ये आपका Q है, और ये जो आपका डिस्चार्ज है इस पाइप में, दिस इज Q1, और जो इस पाइप में डिस्चार्ज है आपका, ये आपका Q2 है. यू अंडरस्टैंड? तो डिस्चार्ज Q, दिस इज इक्वल टू, पैरेलल पाइप का कंडीशन था Q1 प्लस Q. यू अंडरस्टैंड? टोटल डिस्चार्ज, दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. यू अंडरस्टैंड? अब Q क्या है, दिस इज π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू एरिया. Q क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना. जो आपका Q होगा, डिस्चार्ज क्या होता है, दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी. तो एरिया क्या हो गया, π/4 इंटू डी स्क्वायर. तो डी क्या है आपका, 0.4 का स्क्वायर इंटू बी, राइट? दिस इज इक्वल टू into b. This is equal to π/4 into 0.3 का स्क्वायर into b1, राइट? तो Q2 भी यही है, दिस इज इक्वल टू 2 into this one, राइट? पैरेलल पाइप में क्या होगा, क्योंकि इनका डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है, तो इस केस में आपका जो Q1 होगा, जो इस केस में आपका Q1 होगा, दिस इज इक्वल टू Q2 होगा, बिकॉज डायमीटर इज सेम. तो Q1 इज इक्वल टू Q2. तो आप कह सकते हैं, आप जहां पे 2 लिख लें, राइट? 2 π/4. यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये π/4 ये कैंसिल हो गया, दिस π/4 कैंसिल हो गया. यू अंडरस्टैंड? सो b1 दिस इज इक्वल टू, b1 किसके बराबर आया, कैलकुलेट कर लो. b1 दिस इज इक्वल टू 0.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.3 स्क्वायर इंटू 2, राइट? ऐसे कर लीजिए इसको, 0.4 इंटू स्क्वायर इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0.3 स्क्वायर इंटू b1
right? This is equal to B1. Therefore इसको आप कर लीजिए, कितना आएगा ये, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। This is 2. So this is a 0.18. तो 0.4 दिस इज इक्वल टू, इसको कर लीजिए, ये कितना आ गया 0.16, जी आपका आ गया 0.16b, दिस इज इक्वल टू 0.18b1, राइट। तो जहां से आप b1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जहां से आप क्या करें b1 की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें b1 की वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ b, तो b1 की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ b मिलेगी यहां से। So therefore b1 this is equal to 0.16 0.18 into b, you understand। तो इसके फाइंड आउट करो कितना आया, 0.16 0.18 into b, so this is equal to दिस इज इक्वल टू 0.888b, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0.888b, यू अंडरस्टैंड। अब आपको समझ आ गया, ये हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाया, और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाने से हमें क्या मिला कि जो b1 की वैल्यू थी दैट वी हैव कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ b, यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज हमें फाइनली वी वांट द वेलोसिटी, b की वैल्यू हमें चाहिए, तभी टोटल डिस्चार्ज हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो मेन पाइप है इसमें डिस्चार्ज और ये जो पैरेलल पाइप्स हैं इसका डिस्चार्ज सेम है, यू अंडरस्टैंड। मेन पाइप का एरिया हमारे पास है, यू अंडरस्टैंड दिस, मेन पाइप का एरिया हमारे पास है, और अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लें तो डिस्चार्ज दिस इज इक्वल टू a इंटू बी, तो आपका निकल जाएगा। तो b1 की वैल्यू आ गई, इसको मिटा दीजिए, तो आप इसमें b1 की वैल्यू पुट कर दें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें आप b1 की वैल्यू पुट कर दें, तो 10 दिस इज इक्वल टू 15.29 बी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही आएगा, प्लस 10.19 कितना था ये 0.888 बी का होल स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। ये हमारी इसकी वैल्यू आई। अब जहां से आप क्या करें बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी।
तो दिस इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन करने के बाद 10, दिस इज इक्वल टू 15.29 बी स्क्वायर प्लस 8 पॉइंट, ये कर लीजिएगा इसको, 8.035. So this is 8.035 b square. You understand? 8.035 b square. तो जहाँ पे अभी सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट द बी की वैल्यू क्या आएगी? सिंपली 0.854 मीटर पर सेकेंड, 0.654. सो सिंप्लीफाई कर ले आप, तो B यू विल गेट द वैल्यू ऑफ B, दिस इज इक्वल टू 0.654 मीटर पर सेकेंड. समझ आ गया ये क्वेश्चन कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को चलाया? ये आप डिस्चार्ज आपका निकल जाएगा. देयरफॉर discharge Q, this is equal to area into B, and this is equal to pi by 4. एरिया क्या है बड़ी पाइप का? 0.4 स्क्वायर डायमीटर, और B का वैल्यू है 0.654. राइट? तो ये आपका डिस्चार्ज आ गया. राइट? यू अंडरस्टैंड दिस? सो this your discharge, that is equal to 0.0822 meter cube per second. So this is 0.0822 meter cube per second. So ये एप्लीकेशन आपको समझ आ गया? So this application you have understood. ये ऐसे केसेस में भी इस्तेमाल होता है. 2 रेजरवायर्स हैं, राइट? फ्रॉम 1 रेजरवायर वी हैव टू कैरी द वाटर टू द अनदर रेजरवायर, एंड जो अरेंजमेंट पाइप का है वो क्या है? पहले हम सिंगल लेंथ ऑफ द पाइप यूज करते हैं, सिंगल डायमीटर ऑफ द पाइप अप टू सम सर्टन लेंथ, देन देयर इज ए जंक्शन, और जंक्शन के बाद नाउ वी प्रोवाइड द पैरेलल पाइप्स. जंक्शन में एक पैरेलल पाइप जहां से, एक जहां से, दे आर हैविंग द डिफरेंट लेंथ एंड द डायमीटर्स. तो हमें टोटल डिस्चार्ज करना है. तो इस क्वेश्चन में आपको व्हाट यू गॉट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ये जो आपका था जहां पे ये जो 2 पैरेलल पाइप्स थी, हमने जहां पे कंटिन्यूटी इक्वेशंस लगाया, राइट? और जो इसका कंडीशन था पैरेलल पाइप्स का, जैसे मैंने आपको बताया है कि डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज Q, दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. जो डिस्चार्ज जहां से चल रहा था दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. यू अंडरस्टैंड दैट? कंटिन्यूटी की इक्वेशन क्या है, क्या कहती है कि डिस्चार्ज A1 B1, दिस इज इक्वल टू A2 B2, दिस इज इक्वल टू A3 B3. तो डिस्चार्ज तो आपका सेम होगा. दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो जो डिस्चार्ज आपका जहां पे था, डिस्चार्ज एट द ए बी, दिस इज इक्वल टू द डिस्चार्ज फ्रॉम द पाइप बी सी प्लस डिस्चार्ज फ्रॉम द पाइप सी डी. यू अंडरस्टैंड? जो डिस्चार्ज आपका Q जहां से था, एक ब्रांच आपका Q1 जहां चला गया, एक जहां पे चला गया, और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि जो टोटल डिस्चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड? वो आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. अब इसमें क्या था, ये जो पैरेलल पाइप थी इसका लेंथ भी सेम था, डायमीटर भी सेम था, इसलिए जो Q1 है दिस इज इक्वल टू Q2. यू अंडरस्टैंड? जो आपका Q1 है Q2 के बराबर है. तो इस तरीके से मैंने 2 इक्वेशंस का इस्तेमाल किया, बर्नौलीज इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज
continuity equation और ये जो total discharge हमने find out कर लिया, right? So if you will get the practical applications like this and we have to find the discharge, we have to calculate the discharge. तो जैसे मैंने आपको बताया, you should not forget this thing. We apply the Bernoulli's equation at one as well as the continuity equation. जो मेन इसका है Bernoulli's equation लगता है और continuity equation लगता है. तो एक और हम प्रैक्टिकल कोई एप्लीकेशंस देखते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, दैट वी विल सी. So this is your second problem or you can say applications. देखिए क्या है ये, what is the problem? First we will understand. हमें इस किस्म का कंडीशन दिया गया है. We are having the two reservoirs. Say this is a reservoir A and this is the reservoir E, right? Two reservoirs, they are connected by the two pipes. They are connected by the two pipes which are parallel to each other. You understand? जो आपस में parallel है and they are connected by these two pipes like this. Length दोनों का same ही होगा obviously the length will be same but the diameter of the pipe is different. Suppose अगर ये पहली pipe जो है इसका diameter 50 mm है तो इसका diameter 100 mm. You understand this? Again, this is given the problem, the difference in the level of the difference in water level of two tanks that is given as 10 meter. तो means आपको H जो आपका head है this is given as 10 meter. जैसे आपने पढ़ा है कि difference of the water level in two tanks that is denoted by capital H and this you can say head loss, right? This is the and F is also given as 4F. जहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 4F की वैल्यू that is 0.32. This is given in the problem, right? So these parameters are given. The first thing we have to find the discharge in each pipe. Q1 हमें निकालना है and Q2 हमें निकालना है, right? सपोज ये पहली पाइप है, इसका डिस्चार्ज क्या है Q1 है जो आपका इसका डिस्चार्ज है और जो सेकंड पाइप है इसमें डिस्चार्ज क्या है Q2. तो पहले हमें इंडिविजुअली इनका डिस्चार्ज निकालना है कि ईच पाइप में क्या डिस्चार्ज होगा, Q1 क्या होगा, Q2 क्या होगा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. इन द सेकंड पार्ट दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट उसमें सेकंड पार्ट में उसने क्या किया था, व्हाट ही हैज सेड कि इफ आई विल रिप्लेस दीज टू पाइप्स, ये जो पाइप्स सबकी कनेक्टेड पैरेलल हैं, इफ आई विल रिप्लेस दीज टू पाइप बाय द इक्वल लेंथ, सिंगल पाइप से हम रिप्लेस करते हैं, बट द डायमीटर इज अननोन टू अस. डायमीटर क्या है, वो अननोन है, वो हमें पता नहीं है. दैट वी हैव टू कैलकुलेट. डिस्चार्ज आपका सेम होना चाहिए. डिस्चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा. और अगर इन दोनों पाइप्स को हम एक सिंगल पाइप से रिप्लेस करें तो वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ दैट पाइप. यू अंडरस्टैंड? सो हमें उसका डायमीटर पाइप का देना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका क्वेश्चन है. अब देखिए हमें एक तो आपको Q1 निकालना है ये और एक आपको Q2 निकालना है, राइट? तो जैसे आपको पता है कि अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन फॉर फर्स्ट पाइप के लिए लगाते हैं, जो पहली पाइप है उसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर दोनों के ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा. अभी पिछला क्वेश्चन किया, बर्नौलीज इक्वेशन एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट फॉर फर्स्ट पाइप हम लगाएंगे तो ये आपका होगा कैपिटल H, यही आया था ना. दिस इज इक्वल टू HF1 फॉर पाइप नंबर 1. यू अंडरस्टैंड?
फॉर पाइप नंबर 1 H इज इक्वल टू HF1। समझ आया जी आपको पॉइंट कैसे? ये लगा के देख लीजिए। अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर इन द टैंक A एंड टैंक B। तो यही था ना आपका PAY रो जी प्लस BA स्क्वायर बाई 2G। तो इसका डेटम है सपोज ZA, दिस इज इक्वल टू PY रो जी प्लस BB स्क्वायर बाई 2G प्लस ZB प्लस HF2। You forgot about this पाइप नंबर 2। पहले मैंने आपको पाइप नंबर 1 के ऊपर लगाया है जी, राइट। तो जैसे आपको पता है PA बाई रो जी, व्हाट इज दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज ZA, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस ZB प्लस HF, राइट। Therefore ZA minus ZB is equal to HF, and ZA minus ZB, what is this? This is equal to H। ये जो एलिवेशन का डिफरेंस है इसे हम हेड से डोनेट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू HF1, राइट। तो तभी मैंने ये डायरेक्ट जहां पे लिख दिया, यू अंडरस्टैंड दिस, तभी मैंने डायरेक्ट ये लिखा H इज इक्वल टू HF1। यू अंडरस्टैंड दिस? राइट। तो ये आपका आ गया जहां पे, ठीक है। तो HF1 क्या है आप देखिए, देयरफॉर 10 दिस इज इक्वल टू 4F इंटू L1 इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 2G इंटू D1। यू अंडरस्टैंड? तो इसमें आप वैल्यू पुट करें। 4F दिस इज गिवन एज, दैट इज 4F दिस इज गिवन एज 0.32। So this is 0.32. What is your L1? This is 100. B1 square हमें मालूम नहीं है, we have to find out. And 2G 9.81 and D1 this is given as 0.D1 50 mm, right? So this is 0.005, right? This is 0.005. Right? 0.05. तो दिस इज 0.05। तो इसको कैलकुलेट करें अगर हम, तो B1 स्क्वायर जहां से हमें B1 की वैल्यू मिल जाएगी। यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 2 9.81 0.05 divided by 0.32 into 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद we will get the value of B1। तो B1 की क्या वैल्यू आएगी? This I have already calculated। So B1 is
5535 meter per second. 55, this is 0.05535 मीटर पर सेकेंड. तो ये इस तरीके से आपको ये इक्वेशंस लगाया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, नॉट दिस इज v1 स्क्वायर, you will get the value of, therefore v1, this is 0.5535 meter per second. b 0.5535 meter per second. You understand? So you have calculated the value of v1. तो डिस्चार्ज इन पाइप 1, ये भी हमें पूछा है कि वी विल फाइंड द डिस्चार्ज इन पाइप 1. दिस इज Q1. Q1 इज द डिस्चार्ज इन पाइप 1. दिस इज इक्वल टू A1 इंटू V1. V1 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो A1 की जगह लिखेंगे π/4 इंटू D1 स्क्वायर. क्या है जी? 0.05 का होल स्क्वायर, जी आपका एरिया आ गया, एंड दिस इज योर 0.5535 क्या वेलोसिटी आ गया. तो कैलकुलेट करके बताइए मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1. Q1 का क्या वैल्यू आया? This is a 1.087 लीटर पर सेकेंड, नहीं मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा. यस, तो Q1 दिस इज 1.087 meter cube per second. So this is your Q1. You understand? तो फर्स्ट पार्ट आपने निकाल लिया Q1 का. इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट भी इसका कैलकुलेट कर लेंगे. तो पैरेलल पाइप में कंडीशन आपने पढ़ा था. पैरेलल पाइप में क्या कंडीशन पढ़ा था आपने? कंडीशन था ये हेड लॉस इन पाइप 1 फॉर, ये लिख लो, फॉर पैरेलल पाइप्स कंडीशन, ठीक है ना. हेड लॉस इन पाइप 1, दिस इज इक्वल टू हेड लॉस इन पाइप सेकेंड. जो हेड लॉस पाइप 1 में है वो हेड लॉस पाइप सेकंड में होगा. तो इसका मतलब जो है, जो आपका HF2 है, दैट इज हेड लॉस इन पाइप सेकंड, दिस इज इक्वल टू, इसी के बराबर होगा, बिकॉज द हेड लॉस इन पाइप 1 HF1, दिस इज इक्वल टू H, HF2 दिस इज आल्सो इक्वल टू H. अदरवाइज क्या करें, दोबारा बर्नौलीज इक्वेशन लगा दीजिए इस पाइप के लिए, तो आपका HF2 दिस इज इक्वल टू H आएगा. यू अंडरस्टैंड? बर्नौलीज इक्वेशन ऑन द same position, that is the free surface of the tank, free surface of the water in this tank and in this tank. अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो you will get HF2 this is equal to H. You understand? Otherwise head loss in pipe 1 this is equal to head loss in pipe second. When the pipes are connected in parallel, जो head loss होगा उनमें पाइप एक का या दूसरे का जो पैरेलल आपस में कनेक्टेड है, that is equal to this, right? तो आप वैसे ही HF2 कर लीजिए. 4F दोनों के लिए 4F की वैल्यू उसने गिवन दिया है क्वेश्चन में, सेम है 4F इंटू L2
into B2 square upon 2 into G into D2. You understand? तो J आपका 0.32. What is your L2? This is 100. What is your V2 square? J हमें निकालना पड़ेगा इधर. 2G 9.81 into D2. You understand? R, you can say H क्या था आपका? Difference in water level. This is equal to 10. This is equal to, ये कर दीजिए अब, 0.32 into 100 into B2 square upon 2 into 9.81 into, what is your D2? That is given as 100 mm. तो ये आएगा आपका 0.1. You understand? तो जहाँ पे सिंप्लीफाई करें एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ B2. कैलकुलेट करके बता दीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2. दैट इज 0.7834 मीटर पर सेकेंड. 0.7834 मीटर पर सेकेंड. तो B2 की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद B2 0.7834 मीटर पर सेकेंड. राइट, जी आ गया. तो Q2 भी आपका निकल गया. डिस्चार्ज इन सेकंड पाइप क्या है? 82 इंटू B2. देयरफॉर Q2 डिस्चार्ज इन सेकंड पाइप पाई बाई 4 इंटू D2 का स्क्वायर. व्हाट इज योर B2? दैट इज 0.1 का स्क्वायर एंड B2 अभी आपने निकाला 0.7834. तो Q2 आपका निकल जाएगा. यू अंडरस्टैंड? तो Q2 आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे. व्हाट इज योर डिस्चार्ज? सो दिस इज 6.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो Q2 इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जाएगा 6.15 लीटर पर सेकेंड. और जो आपका Q1 आया था दैट इज नॉट मीटर क्यूब पर सेकेंड. एक्चुअली आई फॉरगेट दैट 10⁻³ भी था वहाँ पे. तो Q1 की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 1.087 लीटर पर सेकेंड था. दिस इज ऑल्सो 1.087 लीटर पर सेकेंड. राइट. तो इस तरीके से जो आपकी Q1 और Q2 की वैल्यू हमारी दोनों डिस्चार्ज आ गया. यू अंडरस्टैंड दैट? Q1 ने क्या था वो मैंने मीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा था. आई फॉरगेट हियर बिकॉज देयर इज 10⁻³ आल्सो व्हेन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज देयर. वो इसमें था, ऐसे था 1.087 इंटू 10⁻³ राइट. तो 10⁻³ इट मीन्स दैट इफ यू विल डिवाइड दिस बाई 1000 तो ये आपको लीटर में वैल्यू देगा. यू अंडरस्टैंड दिस? तो दिस इज आपका Q1 1.087 लीटर पर सेकेंड एंड Q2 दिस इज इक्वल टू 6.15 लीटर पर सेकेंड. यू अंडरस्टैंड? तो दिस यू हैव गॉट द वैल्यू. ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर. दैट वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्चार्ज इन पाइप नंबर 1 एंड इन पाइप नंबर 2. यू अंडरस्टैंड? हमने पाइप नंबर 1 और पाइप नंबर 2 में डिस्चार्ज फाइंड आउट किया है. यू अंडरस्टैंड दिस? अब सेकंड था कि इफ वी विल रिप्लेस दीज टू पाइप्स विद ए सिंगल पाइप. अगर मैं ये जो दोनों पाइप हैं एक सिंगल पाइप से रिप्लेस करता हूं तो उस वक्त जो हमारा डिस्चार्ज तो सेम होगा बट वी हैव टू फाइंड द डायामीटर ऑफ दैट सिंगल पाइप. यू अंडरस्टैंड दैट? क्वेश्चन क्या है?
if we replace these two parallel pipes, ये एक और कंडीशन देते हैं हम, if we replace these two parallel pipes with single pipe, तो we have to find the dia of single pipe. हमें क्या करना है, सिंगल पाइप का डाया निकालना है. यू अंडरस्टैंड दिस? अब देखिए, जो हमारा टोटल डिस्चार्ज था Q, if I will say that the total discharge Q is the discharge in the single pipe of the diameter D and length तो इसका 100 ही होगा. It is having the length is same because these two reservoirs, they are at the distance of 100 meter, you can say, right? So D diameter, if I say L is the length of the pipe and this is equal to 100 meter, D is the diameter of the single pipe, then the total discharge, जो सिंगल पाइप में जो टोटल डिस्चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? व्हेन द पाइप्स आर पैरेलल, तो टोटल डिस्चार्ज क्या होगा? अगर ये दोनों पाइप्स जो है, मैं कहता हूं कि ये जहां पे जंक्शन करके आपने एक पाइप बना दी, जहां इसको रिमूव करके आप इन दोनों पाइपों को रिमूव करके एक सिंगल पाइप लगाएं, तो जो डिस्चार्ज होगा, क्योंकि हम in place of this we are applying here, so this is equal to Q1 plus Q2. You understand? So total discharge single pipe में क्या होना चाहिए? That should be equal to Q1 plus Q2, right? तो Q क्या है? Pi by 4 into D square. This is area. D is the diameter of the pipe, single pipe, which is unknown. हमें find out करना है. And B is the velocity in that pipe. इसको भी रहने दीजिए आप. तो टोटल Q आपका क्या आ गया? What is your Q1? This is Q1 था आपका, I think 1.0. ये मुझे बताइए आप Q1 कितना था? 1.087 plus 6.15. 087 प्लस 61.15, और ये आपका कितना हो गया टोटल? कर लीजिए जमा. So this is equal to 7.237. So this is 7.237, right? Liter per second. You understand this? तो टोटल डिस्चार्ज आपका आ गया ये. टोटल डिस्चार्ज दिस इज इक्वल टू, एंड डिस्चार्ज क्या होता है? दैट इज एरिया इनटू बी. ए इज द एरिया ऑफ द सिंगल पाइप, बी इज द वेलोसिटी. यू अंडरस्टैंड? बी इज द क्या है? वेलोसिटी है. ए सिंगल पाइप का एरिया है. तो आप वेलोसिटी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं. क्यू आपके पास है. यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज इक्वल टू क्यू. तो क्यू आपके पास है जब कितना है? 7.237. एरिया क्या हो गया? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर टू बी, राइट? पाई बाई 4 डी स्क्वायर into B. Therefore, B is equal to 0.009214 upon D square. Therefore, B is equal to 0.009214 अपॉन डी स्क्वायर, राइट? तो डी स्क्वायर की वैल्यू अपने नीचे आ जाएगी, तो वेलोसिटी आपका जाएगा.
So velocity is equal to this one. You understand this? तो इसमें भी वही इक्वेशन लगाइए हेड लॉस वाली। तो हेड लॉस इसमें क्या होगा? So loss of head through single pipe, velocity अपने निकाल लिया। This is a meter per second. तो loss of head in single पाइप, तो जे भी वही आएगा एच। बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, जब इसको दोनों को रिमूव करके सिंगल पाइप होंगे तो एच इज इक्वल टू एच एफ। और एच एफ क्या है? दिस इज इक्वल टू एच कितना है? 10 है। एच एफ का फार्मूला आ गया 4f l बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू डी, राइट। 4FL बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू जी। तो बस इसमें आप क्या करें, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। देयरफॉर 10 इज इक्वल टू 4F क्या है? 0.32। L तो आपका 100 ही आएगा। व्हाट इज योर बी स्क्वायर? बी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करें 0.009214 का इधर भी होल स्क्वायर आएगा, नीचे भी D2 का ऐसे सेपरेट कर लीजिए, होल स्क्वायर आएगा। यू अंडरस्टैंड? अपॉन 2 इंटू जी क्या है? 9.81 इंटू डी, ऐसे करके। यू अंडरस्टैंड दिस? तो इस सभी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये सारा ऊपर और नीचे को सिंप्लीफाई करिए तो देखिए कितना आता है। ये क्या आएगा ये सिंप्लीफाई करने के बाद? सो दिस कम्स 0.001384 D5। तो दिस इज इक्वल टू तो ये सभी को अगर आप करते हैं तो सो यू विल गेट दैट 0.001384 ये कर लीजिएगा। इसमें 10 दिस इज इक्वल टू this is equal to triple 0.1384 0.1384 डिवाइडेड बाई ये D2 का होल स्क्वायर D4 इंटू डी दैट इज D5, राइट। हमें क्या करना है? डायमीटर निकालना है तो D5 को आप इधर ले जाइए और 10 इधर आएगा तो जाएगा 0.000, एक जीरो लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 है तो जाएगा 0.1384। Therefore the D diameter of the pipe 0.00001384 raised to power 1/5। और आप ये कैलकुलेट करें हाउ मच यू विल गेट। सो डी दिस इज इक्वल टू 106.7 mm। So D this is equal to 106.67 mm. You understand?
So this is the second applications here. This is the second application. कि two reservoirs, they are connected by the two parallel pipes having the length is same but the diameter is different. First part of the question is that we have to find the discharge in each of the pipe. वो हमने निकाल लिया. Now these two pipes are being replaced by the single pipe. और single pipe the discharge that should be same. तो हमें अब क्या करना था, सिंगल डायमीटर का हमें सिंगल पाइप का डायमीटर निकालना था. यू अंडरस्टैंड. तो इस तरीके से किया. पहले तो हमने ये बर्नौलीज इक्वेशन लगा के, जिस तरीके से भी है इस पाइप के ऊपर लगाया, इस पाइप के ऊपर लगाया और बर्नौलीज इक्वेशन लगा के H इज इक्वल टू HF1 करके वैल्यू पुट किया. H का वैल्यू दिया था हमें, डिफरेंस इन एलिवेशंस. तो वहां से हमें B1 का वैल्यू मिल गया. B1 इज इक्वल टू B2 बिकॉज द पाइप्स आर पैरेलल एंड द डायमीटर सेम. सो जो B1 वेलोसिटी का वैल्यू इस पाइप में होगा वही इसमें होगा. यू अंडरस्टैंड. नहीं, डायमीटर इज डिफरेंट. तो B1 एंड B2 बोथ आर डिफरेंट. तो B1 और B2 का हमने सेपरेटली हमने B1 B2 की वैल्यू निकाली और इसी हिसाब से हमने इसका डिस्चार्ज Q1 दिस इज इक्वल टू A1 B1 Q2 A2 B2 तो ये निकाल लिया. सेकेंड पार्ट था कि इफ वी विल रिप्लेस दीज टू पाइप्स बाय सिंगल पाइप, तो हमें उसका डायमीटर नहीं दिया है. वी हैव टू फाइंड द डायमीटर बट डिस्चार्ज दैट शुड बी सेम. तो उसमें भी हमने सेम कंडीशन लगाया, बर्नौलीज इक्वेशन लगाया सिंगल पाइप लेके. तो आपका H इज इक्वल टू HF आ गया. वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली. और जो इसमें एक कंडीशन जो लगी थी, जो डिस्चार्ज है, टोटल डिस्चार्ज that is equal to Q1 plus Q2, discharge in pipe number 1 and pipe number 2. ये आपका कंडीशन है पैरेलल पाइप में कि पैरेलल पाइप का जो टोटल सम ऑफ द डिस्चार्ज होगा, जो आपका डिस्चार्ज इन वन पाइप प्लस डिस्चार्ज इन सेकंड पाइप होगा, दैट इज इक्वल टू द टोटल डिस्चार्ज. तो इस पाइप की जगह हम एक पाइप इस्तेमाल करते थे. इन दोनों पाइप की जगह जो सिंगल पाइप डायमीटर डिस्चार्ज सेम होना चाहिए. तो ये कंडीशन लिया था Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. Q1 Q2 हमने पीछे निकाला था. वहां से हमें टोटल डिस्चार्ज मिल गया, क्या वैल्यू है. और वहां से हमने वेलोसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D डायमीटर आई. और उसके बाद ये जो इक्वेशन थी H इज इक्वल टू HF, उसमें ये सारी चीजें पुट की और हमें डायमीटर ऑफ द पाइप आ गया. यू अंडरस्टैंड. तो ये था आपका लेक्चर, फ्लो थ्रू पाइप्स व्हेन द पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट. इसमें सिर्फ दो कंडीशंस हैं. मेन इसमें जो है वो क्या है कि आपको ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर आपको जो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको क्वेश्चन का एक ट्रेंड पता होना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. तो जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई कि जहाँ पे आप बर्नौलीज इक्वेशंस का और कंटिन्यूटी इक्वेशन इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है और कैसे अपने अप्लाई करनी है. आप जितनी मैक्सिमम इसकी न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, प्रॉब्लम्स निकालेंगे, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में है, तो आपको उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ही आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर अगर आपको डिज़ाइन करना है कि किस तरीके से जहाँ से लेके वहाँ तक हमें पानी पहुँचाना है, क्या डिज़ाइन है, तो वो आप तभी आप कर सकते हैं. मुमकिन सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ के आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी. दिस इज माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, राइट. आई नो दैट द स्टूडेंट्स दे आर नॉट आफ्टर द न्यूमेरिकल्स और द प्रॉब्लम्स फील्ड का नहीं है. वो तो वही जो क्रैमिंग करके जो चीज़ें आनी हैं उसी में देखते हैं. बट यू विल नॉट गेट द सेटिस्फैक्शन अनटिल अनलेस कोई भी आप टॉपिक पढ़ें उसके आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करें, उसकी आपकी जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको दी हैं, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते डिफरेंट, क्योंकि जहाँ पे तो क्या है कि मैं एक या दो एप्लीकेशन से ज़्यादा नहीं करवा सकता बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. उसमें टाइम बहुत लगता है. अदरवाइज 4 5 6 डिफरेंट टाइप ऑफ देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस आई कैन टीच हियर, डिस्कस हियर, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. That is not practically possible here. ऑनलाइन टीचिंग में वो पॉसिबल नहीं है.
लेकिन फिर भी मेरा एक होता है कि जो भी मैं आपको टॉपिक करवाता हूँ उसमें आपको पहले मेन जो न्यूमेरिकल्स हैं, मेन जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसके कराएंगे, और उसके बाद जो आपके छोटे छोटे कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रोफेशनल एग्जाम में आते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। अभी इसमें तो बहुत लेक्चर्स हैं, इसके बाद आपका नेटवर्किंग के ऊपर लेक्चर होगा, राइट। नेटवर्क ऑफ द पाइप क्या है, फिर आपका इसमें हैमर जो आपका है उसमें होगा। तो इस तरीके से अभी 2-3 लेक्चर्स इसके हैं, और जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, कोई चीज़ इसमें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद देन वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जो कंसेप्ट, क्योंकि तब तक हमें भी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो बेसिकली इन्हीं कंसेप्ट से होती हैं, डिफरेंट तो कुछ नहीं आता। वट एवर वी राइट वी डिस्कस्ड दैट इज़ इन द प्रॉब्लम। और जब आपको एक किसी टॉपिक के बारे में, किसी चैप्टर के बारे में पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, यू अंडरस्टैंड। सो माई फोकस इज़ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इस टॉपिक को आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करें। रहा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का, तो वो आप उसमें से आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी, इधर भी आपको करवाएंगे, राइट। तो वो तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा, अनटिल और अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स जो है पाइप नेटवर्क के ऊपर होगा, तो उसको हम देखेंगे, राइट। सो थैंक यू।